प्रोवर्ब्स 14th चैप्टर और 15th चैप्टर हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। चैप्टर 14 प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एवरी वाइज वुमन बिल्डeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. He that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. In the mouth of the foolish is a rod of pride. Hallelujah. हर एक बार पढ़ेंगे। इन द माउथ ऑफ द फुलिश इज अ रॉड ऑफ pride, but the lips of the wise shall preserve them. Hallelujah. Where no oxen are, the crib is clean, but much increase is by the strength of the ox. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. A scorner seeketh wisdom, and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man when thou perceivest not in him the lips of knowledge. आपकी फ्रेंडशिप छोड़कर चले जाएंगे जिनको आपके अंदर परमेश्वर की भाषाएं नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर के खोजी है वो परमेश्वर की भाषाओं को समझते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की भाषा नहीं मिलेगी तो आपके लाइफ में से वो लोग चले जाएंगे। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। 8th verse, the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है रिलेशनशिप, तो वो लोग परमेश्वर के वचन को सामने लेकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये सही समझदारी का रास्ता है और यही बुद्धिमानी का रास्ता है। लेकिन शैतानी जगत की दुष्टता, क्रूरता, मन में कड़वाहट लेकर जो फिर भी मसीह अपने आप को कहता है, तो वह फुलिश हो जाता है, वो धोखेबाज हो जाता है। बट द फॉली ऑफ फूल्स इज डिसीट। ओके, तो इसके लिए उनके साथ हमारी बनती नहीं है, उनसे हम दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का सुगंध नहीं रहता है। जो परमेश्वर का उपस्थिति का ज्ञान रहता है, उसका सुगंध वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। उनके मन की बदबूदार अवस्था ही हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। फूल्स मेक अ मॉक एट sin, but among the righteous there is favor. Hallelujah. ये हम सब हिंदी में पढ़ेंगे तब आपको मज़ा आएगा। अगर आपको हिंदी भाषा में मिलेगा तो हमेशा मूर्खों को वही पसंद आता है जो पाप के झूठ की रोटी है, वही उनकी तसल्ली बनती है। ओके, उनको वही रास्ता आसान लगता है, वही रास्ता उनको ठीक लगता है और वैसा करना उनको जायज़ लगता है, एकदम जायज़ लगता है। ऐसा ही करना चाहिए, बस इसको तो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, बस इसके साथ तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ओके, वो मूर्खता है। लेकिन धर्मी का अगर देखेंगे तो उसके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि होती रहती है। The heart knoweth his own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with his joy. The house of the wicked shall be overthrown, but the tabernacle of the upright shall flourish. There is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Even in laughter the heart is sorrowful, and the end of that mirth is heaviness. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself.
The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. A wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confidence. But the fool rageth and is confident. He that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The evil bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. The poor is hated even of his own neighbor, but the rich hath many friends. He that despiseth his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor, happy is he. Do they not err that devise evil? But mercy and truth shall be to them that devise good. In all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. The crown of the wise is their riches, but the foolishness of fools is folly. A true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. In the multitude of people is the king's honor, but in the want of people is the destruction of the prince. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. He that oppresseth the poor reproacheth his maker, but he that honoureth him hath mercy on the poor. The wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding, but that which is in the midst of fools is made known. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him that causeth shame. Chapter 15, first verse say, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. The tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. The lips of the wise disperse knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that followeth after righteousness. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Hell and destruction are before the Lord. How much more than the hearts of the children of men? A scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the wise.
A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. But by the sorrow of the heart the spirit is broken. Okay. The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of fools feedeth on foolishness. All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Amen. Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. A wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. The way of the slothful man is as an hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Folly is a joy to him that is destitute of wisdom. Hallelujah. But a man of understanding walketh uprightly. Hallelujah. 22 verse. Without counsel purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. Hallelujah. A man hath a joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season. How good is it! The way of life is about to the wise, that he may depart from hell beneath. The Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the border of the widow. Thank you, Jesus. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gifts shall live. The heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. The light of the eyes rejoiceth the heart, and a good report maketh the bones flat. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. प्रोवर्ब्स नीति वचन हम पढ़ेंगे 14 अध्याय 15 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। देखिए, हमेशा कभी कभी हम ऐसा पढ़ते हैं कि समझ में आता है हमको कि हमारी गलती क्या है। अगर हम कुछ बातों की बुद्धि को ढूंढ रहे हैं,
और हमको वो प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारी उन्नति उस बुद्धि के कारण रुकी हुई है, क्योंकि वो बुद्धि हम में नहीं है। तो इसका एक रीज़न यहाँ पे दिखाई देता है कि ठट्ठा अगर हम कर रहे होंगे तो बुद्धि हम कितना भी ढूंढेंगे हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, छुटकारा ये बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि ने हमको मार्गदर्शन करके दिखाया कौन से रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो हम छुटकारे को या चंगाई को या जो कुछ भी हमको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बुद्धि मार्ग नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब क्या, हम बुद्धि को ढूंढ तो रहे हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर रहे। तो इसका एक कारण क्या रह सकता है, ठट्ठा हम अगर करते होंगे तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। हम ढूंढेंगे लेकिन प्राप्त नहीं होगा। तो हमको सुधार लेना है, ठट्ठा नहीं करना है और फिर ढूंढना है बुद्धि को और हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर ये एक लेसन नंबर है, ओके। परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज मिलता है। देखो, ज्ञान किसके पास आसानी से जाता है, समझ वाला जो रहेगा, समझ वाले को ज्ञान सहज मिलता है, सहज, आसानी से, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात न पाएगा। तो आप अगर मूर्खों के संगति में रहते होंगे ना, तो आपके पास जितना अच्छा ज्ञान है वो पूरी तरह से सुखा देगा, वो सुखा देगा उसको, ओके। इसके लिए मूर्खों से अपनी जो ज्ञान की बातें हैं वो शेयर नहीं करना है, मूर्खों के सामने अपने ज्ञान को नहीं खोलना है, ओके। वो सुखा देगा उस ज्ञान को, वो जलन करेगा आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान के कारण वो छटपटा जाएगा, इसको इतना क्यों है, मुझे क्यों नहीं है। उसके लिए मूर्खों के सामने कभी भी अपने ज्ञान की बातों को मत खोलिए, मत खोलिए। ये एक लेसन नंबर है हमारे लिए, ओके। मूर्खों के सामने कभी भी ज्ञान को नहीं खोलना है। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है, ओके। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। देखो, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, अपने पाप को अंगीकार करते हैं। अंगीकार मतलब मजाक समझते हो, पाप मतलब एकदम उनके लिए एकदम एंजॉय करने का कोई ऐसा चीज़ है, ऐसा उनको लगता है। हर एक पाप का शब्द, हर एक पाप की अशुद्ध काम, अशुद्ध बातें, अशुद्ध क्रियाएं उनको मजाक लगता है, उनको भले तरह से मनोरंजन लगता है वो। लेकिन सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। तो अब अगर आपके पास अनुग्रह कम लगता है, आपको कुछ बात करने के लिए, कुछ काम करने के लिए अगर आपके ऊपर अनुग्रह कम लगता है, तो आपने ये ध्यान देना है, क्या आप पाप को मजाक बना बना कर एंजॉय कर रहे हैं क्या अपने अंदर, ओके। तो ये एक कारण हो सकता है, ये एक लेसन नंबर हो सकता है, ठीक है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। देखो, आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़ेंगे तो फिर आपका फल आपको मिलेगा और वो फल आपको दुखदाई रहेगा, ओके। परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। भला मनुष्य अकेले में भी तृप्त, परिपूर्ण और आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ रहता है। जो भला मनुष्य है उसकी ये पहचान है। देखिए, ये सारा चीज़ें हमारे जीवन में हम जी रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का हम परखने का हमको रास्ता रहता है। ये हमारे अंदर है
तो हम चल रहे हैं ठीक से, ये नहीं है तो इसका कारण दिया गया क्यों नहीं है। ओके, वैसे वैसे अपने जीवन को सीधा कर लेना है। अगर आपको दूसरे ठीक लगते हैं, आप ठीक नहीं ऐसे लगते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ है ऐसा जो आपको वचन बता सकता है। वो आप वचन जान लेना ज़रूरी है ताकि आपके अंदर भी वो आनंद और संतुष्टता आ सके। ओके, 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। देखो क्या लिखा है, चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। वो ध्यान रखता है मैं कौन सा रास्ता ले रहा हूँ, क्या मैं अंधेरे का फायदा ले रहा हूँ या उजियाले का रास्ता ले रहा हूँ। ओके, वो भले भांति जानता है अंधेरे का फायदा उठाने का समय आ गया है, अब चलो हाथ ले लो, जितना भर जाए उतना भर के ले लो। ऐसा अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो समझ बूझ से नहीं चल रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको समझ बूझ के साथ चलना है। ये तो अंत में मुझे दुख देगा, इसका तो मैंने फ़ायदा नहीं उठाना है, अब ये तो मुझे चाहिए भी नहीं, ये अवसर मिला है फिर भी मैं इसे नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंत में दुख मिलेगा मुझे। ये समझ बूझ कर चलना है। ओके, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। ऐसा है ये बुद्धिमानी का रास्ता। वो उसको मालूम है उसके पास उसके लिए बहुत कुछ जगत की ओर से बहुत भला भला प्लेसेंट अच्छा मज़ेदार कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो ध्यान उसका कैसा है, अंत का फल के ऊपर है। वो व्यवस्था विवरण का वही बात आ गया। ओके, कि अंत का फल जो देखता है, अगर किसी ने उसको नहीं देखा तो वो नाश हो जाते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान नाश नहीं होगा क्योंकि वो अंत के फल को जानता है कि अगर मैं अब का समय ले लूँ अपने लिए पाप करने के लिए, कोई भी दुनियादारी की चीज़ें करने के लिए, ठीक है समय बीत जाएगा लेकिन अंत का फल भी मुझे लेना पड़ेगा। ये कारण से वो डर कर वो ऐसा नहीं कि उसको मन नहीं है पाप करने का, नहीं, वो अंत के फल से डरता है। आमीन। और वही ज्ञानी मनुष्य है जो अंत का फल समझकर डर रखते हुए दूर भाग जाता है, उसको ही बुद्धिमानी कहा गया है। ठीक है, और वही लोग मूर्ख बनते हैं जो अंत के फल को बिना सोचे समझे निकल जाते हैं। जो पाप करना है, जो अधर्म करना है, जो गलत बातें करना है, सब कर लेते हैं, आराम से अपना फ़ायदा कर लेते, आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रेयर लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है, बुद्धिमानी बनना है, हमको डर कर बुराई से दूर भागना है। परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। ढीठ रहता है, वो इतना ढीठ रहता है कि उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि इसका अंत का फल जब आएगा तो मेरी तो पूरी हालत खराब होने वाली है। ये नहीं सोचता है, वो अपने अंदर मूर्ख के काम करने में इतना निडर रहता है, आराम से काम करता है और वो ऐसा दिखाता है कि जो करना है कर लो, हमको तो बस यही रास्ता ठीक लगता है। ओके, मूर्ख रहता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। हालेलुया। देखो, झट क्रोध करना, हमको बहुत जल्दी क्रोध नहीं आता है, लेकिन जिस दिन जैसा मून फेसेस के कोई डेज रहते हैं जिसके अंदर विकेडनेस, दुष्टता का भार ज़्यादा रहता है, दुष्टता के आत्माएं ज़्यादा फैली हुई रहती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा अचानक से क्रोध कर जाना, उत्तेजन क्या कहते हैं, उकसा दिया जाना, हमको उकसा दिया जाता है इवल स्पिरिट्स के पावर से, तो हम झट क्रोध करने के लिए उठ जाते हैं, ठपाठप क्रोध करके दिखा देते हैं, लेकिन उस समय हम क्या ठहर जाते हैं, ये वर्ड है मूढ़ता। ओके, तो कुछ पल के लिए भी हम ये ऐसे पोल्यूट हो जाते हैं, डिफाइल हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए भी। ओके, हम दुर्गंधी फैलाने लगते हैं। ओके, बदबूदार हो जाते हैं। तो धर्मियों के अंदर भी ये झट क्रोध का अवसर आता है। ओके, तो हमने जानबूझकर ये बात ध्यान रखना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या ठहरेंगे, मूढ़।
ओके, फिर मूड का जितना भी क्वालिटी है वो सब हमारे अंदर से होने शुरू हो जाएगा, ये रास्ता खोल देगा। ठीक है, भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। हालेलुया। जो चतुर होता है वो समझ के साथ चलता है। मैं अभी हमने पढ़ा ना, वो समझ बूझ कर अपने रास्ते को चलता है। ओके, तो चतुराई, यीशु ने भी कहा सर्प के समान चतुर बनो। ओके, समझ बूझ कर चलो, समय को पहचानते हुए चलो। पौलुस पत्री में भी यही लिखता है, प्रेरित पौलुस भी यही लिखते हैं कि आप समय को पहचानते हुए, इन सीजन आउट ऑफ सीजन। ओके, क्या है सीजन्स को क्या बोलते हैं, ऋतु के अंदर ऋतु के बाहर, जैसा भी जो भी समय असमय कोई भी समय रहो, चतुराई को आप मन के अंदर बनाए रखो कि अब किस प्रकार का हमारे जीवन में होना चाहिए, किस प्रकार का हमने होना चाहिए, किस तरह से हम निकलना चाहिए, किस तरह से हमने टर्न कर लेना चाहिए, कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए। चतुराई से समझ बूझते हुए रास्ता पकड़ते 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 हमने ज्ञान रूपी परमेश्वर के वचन को ना छोड़ते हुए परमेश्वर का वचन पकड़ पकड़ कर अपने रास्ते को चलते जाना, बचते हुए निकल जाना, बुरे समयों में भी बचते हुए निकल जाना, मूढ़ नहीं बनने देना, अपने आप को मूर्ख बनने नहीं देना है, अपने आप को वो कैटेगरी में नहीं जाने देना है जिसको दुष्टता कहा जाता है। बस यही वो ज्ञान रूपी मुकुट है, हम पर वो बांधा जाता है अगर हम प्रभु में सही ढंग से चलेंगे तो। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। देखो, हम जो माता पिता होंगे उनको ये ध्यान रखना है, इवन आत्मिक माता पिता है वो लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर हम भय मानेंगे तो हमारे परमेश्वर का भय मानेंगे, दृढ़ भरोसा रखेंगे उसके भय में, तो हमारे पुत्रों को भी शरण स्थान मिलेगा। आमीन। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हकीम का नाश हो जाता है। 28 पढ़ा हमने, अभी 29 वचन आगे। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। हालेलुया। परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। ये मूढ़ता मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ओके क्योंकि ये भोलों के साथ होती है और भोले सभी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो चतुर नहीं रहते हैं। चतुर का ऑपोजिट है भोला होना। ओके, तो वो ऐसे होते हैं जो चतुराई नहीं करते हैं तो मूढ़ बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर अटैक करता है मूढ़ता। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत रहना है, इससे हमारे शरीर को जीवन मिलता है,
हमारे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, हमारे खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई भी एक्सरसाइज या ये वो कुछ करने का ज़रूरत नहीं। हमारे तन को जीवित रखने का काम, शांत मन रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता को निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। देखो, राजा जो है, बादशाह जो है, वो उस पर रोष कर सकता है, ओके, जो लज्जा के काम करते हैं। ठीक है, तो आपको गुस्सा नहीं करना, आपको डांट नहीं लगाना, आपको किसी के ऊपर झपट नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। हमको अगर कोई लज्जा के साथ हमारे कामों के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ करने लगे तो हम उसके लिए फ्रीडम है हमारे पास, उस पर वह रोष करता है, गुस्सा करता है उसको। ठीक है, हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम क्रोध को जता सकते हैं। क्रोध मतलब वो नहीं कि जो दुष्टता का क्रोध होता है वैसे नहीं, लेकिन लज्जा का काम हमारे सेवादार अगर सेवक लोग करते हैं तो फिर हमारे संगति में रहने वाले कोई ऐसे लज्जा के काम करते हैं तो उन पर डांट फटकार लगाना निकलता बनता भी है, और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बुद्धि जो है वो परमेश्वर के भय के नीचे चलती रहे। तो वो एक प्रकार का वो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा का गुण है, वो लज्जा के कामों को स्वीकारता नहीं है। ठीक है, उसके अंदर सुधार लाने के लिए वो डांट फटकार भी सकता है। 15 अध्याय पहले वचन से, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का 15 अध्याय को पढ़ रहे हैं हम, ओके। पहला वचन हो गया, हम दूसरा वचन पढ़ रहे हैं। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। ये पहला वचन, ये जो 35 वचन हमने पढ़ा 14 अध्याय का, ये बहुत मैंने अनुभव किया है इस बात का, ओके। रोष लाने के बारे में, पवित्र आत्मा जब किसी को सुधारने के लिए आवाज़ चढ़ा देता है, ठीक है, फिर भी वो उस लेवल तक नहीं जाने देता है इंसानों को कि वो डिप्रेशन में चले जाए, ओके। बहुत जल्दी उनको प्रेम के साथ दोबारा गले लगा लेता है। मैंने ये भारी अनुभव किया। ऐसे समझ लीजिए कि दिन में 100% मैं इसका अनुभव करती हूँ, ओके, कि कभी भी कुछ लज्जा का काम होता है, परमेश्वर के विरोध का काम होता है या कुछ भी, तो कुछ डांट फटकार कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसके आगे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम उछलकर लोगों के ऊपर रिलीज हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको डांटता फटकारता सही है, लेकिन आपको निराश होने के लिए नहीं छोड़ता है। वो निराशा में डूबने के लिए या शत्रु आपका फ़ायदा उठाने के लिए वो नहीं छोड़ता है। ये एक खासियत मैंने पवित्र आत्मा का मेरे अंदर बहुत 100% कहेंगे तो भी चलेगा, बहुत गहराई से मैंने इसके गुणों में मैंने जीवन जिया है। और एक बार तीसरा वचन अब पढ़ेंगे, 15 अध्याय का तीसरा वचन आगे पढ़ते जाएंगे। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है।
मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। देखो, हम बातें कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, क्या बढ़ रहा है? हमारे ज्ञान का फैलाव हो रहा है। परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। देखो, ये बिलीवर्स के लिए भी ये बातें हैं। बिलीवर्स लोग मन में सही नहीं है और दुष्टता को धारण किए हुए और फिर वो प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर उसको दुष्ट के हृदय में से प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता है। ओके, अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ के, तोड़ के, मरोड़ के, कुचल के, कैसे भी जीवन जी के फिर आके बैठ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर उसको घृणा करता है। लेकिन जो धर्म के पीछा करते हुए फिर आता है परमेश्वर से कुछ मांगने, प्रार्थना करने, उपवास करने, तो परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ओके, 10 वचन, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। ये बहुत ध्यान रखना है। जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, ओके, बस 2 दिन की होशियारी आ गई, 2 दिन का चतुराई आ गया, 2 दिन में दुनिया की कुछ बातें मालूम पड़ गई, तो बुजुर्ग लोगों को वो ठट्टों में उड़ाना शुरू कर देते हैं। मूर्खता करते हैं ऐसा करने वाले। ओके, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप जियो, जैसे भी जियो, अगर आपने बुजुर्गों को ठट्टों में उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर आप जैसा मूर्ख और कोई नहीं रहेगा। ओके, अगर आप प्रेरितों में, पास्टर्स, लीडर्स में जो अगुवे हैं हमारे, उनको ठट्टों में उड़ाना शुरू कर देंगे तो आप बुद्धिमान नहीं है। ओके, आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने जितना युद्ध जीता है उतना आपने नहीं जीता है। तो निश्चित है कि उनके युद्ध जितने उन्होंने जीते हैं उसके सामने आप कुछ भी नहीं ठहरते। आपको ठट्ठा करने का अधिकार नहीं है उनका। इसके लिए ये ध्यान रखना है। कभी भी ठट्ठा, डांटने वाला को ध्यान रखो, कौन डांट रहा है आपको, उसके कैटेगरी, उसके पोजीशन को देख के ठट्ठे में उसको मत उड़ाइए। चाहे वो हमारे राजनीति के लीडर्स क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ठट्ठों में नहीं उड़ाना है उनको। ओके, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है यह मानो नित्य भोज में जाता है। देखो क्या लिखा है, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। कितना महत्वपूर्ण है। आपका मन डिसाइड करता है रोज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। 17 वचन से आगे, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है।
बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। देखो, नरक में नहीं जाना है, अधोलोक में नहीं जाना है, तो आपको बुद्धिमान होकर मार्ग पकड़ने की ज़रूरत है। जो बुद्धिमान होता है वैसा आप होना ज़रूरी है। वैसा आप होना मतलब वही आप हो जाना ज़रूरी है, वैसा नहीं, वही हो जाना है। आपको बुद्धिमान हो जाना है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। घूस से घृणा करने वाला, चोरी छिपे लुके छिपे कुछ भी किसी का धन या किसी की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे में कर लेना और फिर बाद में उसका ये कहना कि ये तो हमारा ही तो है, क्या हो गया अगर हमने इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ओके, घृणा कर देना है ऐसे आदतों से। इसके कारण फिर हमारे अंदर दुख आ जाता है, घराने को दुख हो जाता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। अब नीति वचन में कितनी सारी बातें मैंने आप लोगों से की, शायद आप बहुत अच्छे सेवा करने वाले, बहुत अच्छे सामर्थ्य अभिषिक्त लोग भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे इतनी बातें तो बोल तो दी, ओके, लेकिन सब कुछ के अंदर हम किसी भी प्रकार का वचन हमारे जीवन में बुद्धिमानी है, ओके, तो हमने उसको ले लेना है। वो जीवनदायी है। हमारी पोजीशंस को नहीं देखना है, हम क्या है, कैसे है, किसकी सुन रहे मत देखो। वचन कह रहा है, नम्र हो जाना है हमको उसके सामने, ओके। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। 33 वचन याद रखिए, ओके। महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर आपके मन में नम्र होने का समय शुरू हो गया तो आप समझ जाइए महिमा आने का समय आ गया है। अगर आपके अंदर ढीठ पाप करने के समय शुरू हो गए तो आप जान लीजिए घमंड आ गया है और गिरने का समय आ गया है, ओके। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, ल्यूक 20 चैप्टर 39 वर्स से 47 वर्स, 1 सैमुअल 23 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 39 वचन से 47 वचन तक और पहले शमूएल के पत्री 23 अध्याय हम पढ़ेंगे जब अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में। जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये 2 साल के बाइबल रीडिंग को, 2 years बाइबल रीडिंग को पढ़ते समय परमेश्वर हमारे अंदर बहुत कुछ सरलता में, ठीक तरह में व्यवस्थित करके हमारा जीवन बनाता है और बनाना चाहता है। हम उसको वो समय देना है। ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर से वचनों के कारण बदले हुए, व्यवस्थित हुए और परमेश्वर के उपयोग का बर्तन होता हम आ जाएंगे। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है। हम निश्चित इस प्यारा सा अनुग्रह का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।
रबेंत आशकर बखोसी इकतील रबहा अखासे कतकिन बरोशरा बखासिया कुंभरासा लहब कतीन रबहा अखासे कतकिन बरासा। मेरे खुदा, इन वचनों का इतना बड़ा महत्व है खुदा हमारे जीवन में कि हम बहुत कुछ के पार हो पाएंगे अगर इन वचनों के अंदर से हमने ज़रा भी परमेश्वर अपना ध्यान नहीं हटाया। बहुत कुछ हम पिता परमेश्वर पार कर जाएंगे। अनुग्रह कर हमें कि हमारा फोकस तेरे वचनों में बना रहे और हम उसी को लेकर आगे बढ़ते रहें। नासरी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इस विषय में हमारी सहायता करो, हमें मदद करो कि हम वचन में से अलग ना हो। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम से हमारे धन्यवाद का बलिदान स्वीकार करने की हम तुझसे विनती करते हैं। हमारी आराधना प्रार्थना हमारे सारे जीवन के समयों में किया हुआ सब, तुझे किया हुआ सब काम पिता हमें अच्छा परिश्रम और अच्छे प्रतिफल तैयार करके दे रहा है। इस विश्वास को देने के लिए तेरा धन्यवाद। तू हमारे धन्यवाद और प्रार्थना और इस परिश्रम को स्वीकार करने के लिए विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।